پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا کیس جسے وقتاً فوقتاً مختلف عدالتوں میں سنا جاتا رہا، جس کے ملزم کو پھانسی کی سزا بھی دے دی گئی، مگر کیس پھر بھی چلتا رہا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کیس کی، جو ایک بار پھر منظر کی زینت بنے۔ اسی کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ کیس پاکستان کی عدلیہ کے ماتھے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کیس کے بیک گراؤنڈ سے لے کر اب تک ہوئے ایک ایک پہلو کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ بیک گراؤنڈ آف دی کیس۔ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، جبکہ احمد رضا قصوری پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن تھے، مگر بعد میں دونوں کے درمیان اختلافات پڑ گئے اور احمد رضا قصوری نے 1973 میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک استقلال پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کے درمیان اختلافات میں عروج تب دکھائی دیا جب 3 جون 1974 کو پارلیمنٹ میں دونوں کے درمیان شدید تکرار ہوئی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے احمد رضا قصوری کو کہا گیا کہ میں تمہیں کافی برداشت کر چکا ہوں، اب میں تمہاری ان حرکتوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 10 نومبر 1974 کی رات کو احمد رضا قصوری کی گاڑی پر لاہور میں شاہو مال کے قریب جب وہ شادی کی ایک تقریب سے اپنے گھر واپس جا رہے تھے، حملہ ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں ان کے والد نواب محمد احمد خان کو گولیاں لگیں، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 11 نومبر 1974 کو 2:55 پر یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ نواب محمد احمد خان کی وفات کے فوراً بعد FIR رجسٹر ہوئی، جس میں احمد رضا قصوری نے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی دشمنی کی بنا پر ان پر حملہ کروانے کی غرض سے نامزد کروا دیا اور کہا کہ یہ حملہ 3 جون 1974 کو پارلیمنٹ میں ہونے والی تکرار کا نتیجہ تھا۔ مزید ان کی جانب سے یہ درج کروایا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر پہلے بھی 2 مرتبہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، پہلا 17 جنوری 1972 کو قصور میں اور دوسرا 24 اگست 1974 کو اسلام آباد میں، اور یہ ان پر ہونے والا تیسرا حملہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ مقدمہ عدالت میں بھی چلا گیا، مگر 1 اکتوبر 1975 کو عدم ثبوت کی بنا پر مجسٹریٹ کے حکم پر اس مقدمے کی تفتیش کو روک کر اسے بند کروا دیا گیا۔ پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء کی جانب سے لگائے گئے مارشل لا کے بعد دوبارہ اس مقدمے کی تفتیش کا حکم دے دیا گیا۔ حکومت کے حکم پر جاری FIA کی اس تفتیش کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے وقت بنائی جانے والی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کے 6 افسران مسعود محمد، میاں محمد عباس، غلام حسین، غلام مصطفیٰ، ارشد اقبال اور رانا افتخار کو گرفتار کیا گیا۔ ان سب نے CRPC کے سیکشن 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ 10 نومبر 1974 کو احمد رضا قصوری کی گاڑی پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، اور انہوں نے یہ سب ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ ان کے اعترافی بیانات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرائل ان ہائی کورٹ۔ اس گرفتاری کے بعد اس مقدمے کو سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں منتقل کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی، جسے ذوالفقار علی بھٹو کے بتائے بغیر ہی منظور کروا لیا، اور 11 اکتوبر 1977 کو باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس مشتاق حسین کر رہے تھے۔ پروسیکیوشن آرگومنٹس۔ پروسیکیوشن کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ 3 جون 1974 کو واقعے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپروور فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل مسعود احمد کے ساتھ مل کر احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش کی، جس کے چلتے میاں محمد عباس FSF کے ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ انٹیلیجنس اپروور غلام حسین، غلام مصطفیٰ، ارشد اقبال اور رانا افتخار، جو کہ FSF کے ہی سر افسران تھے، انہیں بھی اس سازش کا حصہ بنایا گیا، اور یوں 10 نومبر 1974 کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ احمد رضا قصوری پر حملہ کیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے اس مقدمے میں 41 گواہ، جس میں سے اپروورز، FIA کے تفتیشی افسران اور کئی دستاویزی ثبوت بھی شامل تھے۔
डिफेंस आर्गुमेंट्स। इसके जवाब में डिफेंस साइड की जानिब से अदालत में पहले तो अप्रूवर्स मसूद अहमद और गुलाम हुसैन के अलावा बाकी तमाम मुल्ज़िमान ने इतराफ़ी बयानात से इनहराफ किया कि ये बयानात उनसे जबरन लिए गए हैं और उनकी इस हमले में किसी किस्म की कोई शमूलियत नहीं है। जबकि बाद में गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राणा इफ्तिखार की जानिब से बयान दिया गया कि वो इस हमले में शामिल तो थे, मगर उन्होंने ये सब कुछ मियां मोहम्मद अब्बास और अप्रूवर गुलाम हुसैन के कहने पे किया था और इन सब को ये करने का हुक्म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से दिया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से इस पर साफ इनकार किया गया और कहा कि ये अदालती कार्रवाई उनके बुनियादी हकूक़ फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि चीफ जस्टिस मुश्ताक हुसैन के साथ उनके और उनकी पार्टी के इख्तलाफात हैं, लिहाजा वो इस मुकदमे में बाइस्ड हैं। इसके चलते जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदालती बेंच तब्दील करवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर के पास कोई एप्लीकेशन भी दायर की, मगर इन्हें मुस्तरद कर दिया गया और इसी अदालती बेंच की जानिब से ही इस मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल की गई। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। दोनों की जानिब से बयानात और दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर मुल्ज़िमान को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 120B, 302 के साथ सेक्शन 109, 301 और 307 के तहत कैद बामुशक्कत और मौत की सजा सुना दी गई। इसी के साथ सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मकतूल के वारिसान को 25,000 रुपए देने की भी सजा दी गई, जबकि अप्रूवर मसूद अहमद और अप्रूवर गुलाम हुसैन को माफ कर दिया गया। अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर मुल्ज़िमान की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। इस अपील में एपीलेंट की जानिब से एडवोकेट यखिया बख्तियार की जानिब से दलाइल पेश किए गए कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुश्ताक हुसैन के बाइस होने की वजह से इस मुकदमे की कार्रवाई शफाफ तरीके से नहीं हुई और ये मुकदमा महज सियासी दुश्मनी के इवज दायर किया गया, जो बिल्कुल झूठ और फर्जी है। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। शुरू में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने ये मुकदमा सुना, मगर बाद में 2 जजेस कैसर खान रिटायर होने और जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद बीमार होने की वजह से इस बेंच का हिस्सा ना बन सके और यूं सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6 फरवरी 1979 को इस अपील का फैसला जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट की कार्रवाई और फैसले को दुरुस्त करार दे दिया और सजाओं को भी कायम रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। अपील के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई, मगर इसे भी मुस्तरद कर दिया गया। क्रिटिसिज्म ऑन द डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दीगर माहिर कानूनदान की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जिसमें कानूनदान रैमसे क्लार्क का आर्टिकल, जिसमें उन्होंने इस अदालती कार्रवाई को अनफेयर कहा, और जस्टिस नसीम हसन शाह, जिन्होंने इस मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला सुनाया था, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ और अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पाकिस्तान अफेयर्स में बयान किया कि ये फैसला जनरल ज़ियाउल हक के दबाव में किया गया था। फाइलिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 30 साल बाद यानी 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल मर्डर करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के इस केस को दोबारा देखने के लिए कहा गया। इस सदारती रेफरेंस में जो बुनियादी निकात पेश किए गए थे वो कुछ यूँ हैं। पहला, कि इससे पहले किसी मुकदमे में महज अप्रूवर के बयान पर किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। दूसरा, दोनों जजेस के इस मुकदमे को दरमियान में छोड़ने के बाद बजाय उनके दूसरे किसी जजेस को मुंतखब किया जाता, अदालत ने इनकी अदम मौजूदगी में मुकदमे का फैसला सुनाया, जो कि कानूनी और अखलाकी लिहाज से गलत था। तीसरा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मुश्ताक अहमद की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे से हटकर उनको महज नाम का मुसलमान कहने पर यह साफ वाज़ह है कि इस मुकदमे में बायसनेस मौजूद थी, जो कि इस मुकदमे की कार्रवाई और इसके फैसले पर ही सवालिया निशान है। चौथा, ज़ियाउल हक की तकारीर से ये साफ वाज़िया था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए उनके कहने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई गई। पांचवा,
जुल्फिकार अली भुट्टो से हाई कोर्ट में अपील दायर करने का बुनियादी हक भी छीन लिया गया, क्योंकि ये मुकदमा सीधा हाई कोर्ट की जानिब से सुना गया। छठा, जुल्फिकार अली भुट्टो और अप्रूवर के दरमियान साजिश करने का भी कोई सबूत मौजूद नहीं था और इस सूरत में इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट का हक भी नहीं दिया गया। यूं इस सदारती रेफरेंस के जरिए अदालत के इस फैसले में मौजूद मुतअद्दिद कानूनी नुक्तों पर रहनुमाई मांगी गई कि आया जुल्फिकार अली भुट्टो को सुनाई गई सजाए मौत दुरुस्त थी या नहीं। हेयरिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इस सदारती रेफरेंस को दायर करने के बाद इसकी समाअत की गई और 21 अप्रैल 2011 को अदालत ने अपने ऑर्डर में इस रेफरेंस में मौजूद कानूनी सवालों का जवाब देने के लिए 5 सवाल तरतीब दिए। इसके बाद इस रेफरेंस को तकरीबन 12 सालों के बाद दोबारा सुना गया और इन्हीं 5 सवालों के जवाब देते हुए इस सदारती रेफरेंस का फैसला सुनाया गया। डिसीजन ऑन दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने 6 मार्च 2024 को इस रेफरेंस का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुनाया। ये 5 फैसला तलब सवालात और उनके जवाबात कुछ यूं हैं। पहला, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 4 क्लॉज 1, आर्टिकल 4 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10A, 14 और 25 के मुताबिक था? दूसरा, क्या इस फैसले का इतलाक आर्टिकल 199 के तहत बाकी तमाम अदालतों पर लाजिम है? तीसरा, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत सुनाना इंसाफ था या वाजिया तासुब की बिना पर इरादी कत्ल था? चौथा, क्या यह फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक था या नहीं? पहले सवाल के जवाब में अदालत ने अपनी राय सुनाई कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आईने पाकिस्तान में मौजूद मुनसिफाना समाअत और सही तरीके की बुनियादी हकूक के तकाजे पूरे नहीं किए गए। साथ ही इसके असर और नताइज पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कालअदब करने का इख्तियार अदालत के पास नहीं, क्योंकि नजरसानी के फैसले के बाद ये फैसला हकीकी हैसियत इख्तियार कर चुका है। दूसरे सवाल के जवाब में अदालत ने राय सुनाई कि इस सवाल में उन कानूनी असूलों को मुतय्यन नहीं किया गया जिनकी तोज़ी अदालत हाजा ने जुल्फिकार अली भुट्टो में की है, जिनके मुतालिक राय मांगी गई है, लिहाजा इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तीसरे और 5वें सवाल के जवाब में अदालत ने बयान किया कि मशावरती इख्तियार समाअत में अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती, मगर तफसीली वजूहात में इन फैसलों की कानूनी कमजोरियों की निशानदही की जाएगी। चौथे सवाल के जवाब में अदालत ने फैसला दिया कि इस सवाल पर हमें कोई मुआवनत नहीं दी गई, इसलिए इस पर राय देना मुनासिब नहीं होगा। यूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 4 दहाइयों यानी 40 साल के बाद कालअदम करार दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले को कालअदम करार देने की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या फायदा पहुंचा, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कानूनी मकूला है, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड स्टे कनेक्ट विद द लीगल लॉग।